Rank of matrix. इसके लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी है सब मैट्रिक्स. If we are deleting some rows or some columns or both, like this is the rectangular matrix, we are deleting some rows like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deleting this row, this is the submatrix of this one. Again 1, 2, 3, 5, 6, 7. This is also submatrix of the given matrix as 1, 2, 5, 6. This is again submatrix 6, 7, minus 1, 0. So overall we can say that if we are deleting some rows or some columns or both is known as a submatrix of the given matrix. On the basis of this, we can say that the possible submatrix of any given matrix, two types, one is rectangular order and another is square order. So here we are evaluating the only square order matrix. Actually the determinant value of square order submatrix is known as minor. In case of rank, we need only the minor. So minor is the square order submatrix. So that is known as a minor. We are here only for rank. We want only the minor. So rank of matrix definition. A matrix capital A is said to be of rank R if number 1 there must be exist at least one non-zero minor of order R. Second is every minor of higher order R, that is R plus 1th, must be vanishes. It is denoted as rank A is equal to R. ये definition कैसे we can say that here the suppose the A is equal to 1, 2, 3, 4, 1, minus 1, 0, 2, 2, 3, 4, 1. This is 3 cross 4. As per the definition, first we can find the submatrix of order 3 cross 3 square order submatrix, because we want only square order. So suppose this is, we are deleting this column, we will find the first square order 3 cross 3 order matrix. Suppose 4 is possible 3 cross 3 square order matrix. We can find the minor value of suppose A1, A2, A3, A4. There are 4 3 cross 3 possible square order matrix. We find determinant A1, determinant A2, determinant A3, determinant A4.
suppose determinant A1 is 0, determinant A2 is 0, determinant A3 is non-zero. If determinant A3 is non-zero, then we can say that the rank of A is equal to 3, because there must be exist at least one non-zero minor of order 3. अब दिस प्रोसीजर शुड बी कंटिन्यू, और सपोज चारों ही जीरो हो जाएं, उसके आगे की बात करें दूसरे पॉइंट के लिए, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तब आप क्या करेंगे, हम उससे नीचे 2 क्रॉस 2 के, जैसे 2 क्रॉस 2 का ये हो गया, 2 क्रॉस 2 का ये हो गया, 2 क्रॉस 2 का ये हो गया, जितने पॉसिबल 2 क्रॉस 2 के सब मैट्रिक्स होंगे उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू मान लो B1, B2, B3 मान लो 8 ऐसे आते हैं, तो सबकी वैल्यू फिर हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट B1, डिटर्मिनेंट B2, डिटर्मिनेंट B8। अब वही डेफिनेशन ये कहती है कि मान लो डिटर्मिनेंट B2 जो है वो नॉन जीरो एक आ जाए, पहला ही B2 चेक करने पे हमको पहला ज़ीरो आ गया, दूसरे को चेक किया कि ये नॉन ज़ीरो आ गया, तो उसको देखते हुए हम कह देंगे कि रैंक A इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि आगे हमें नहीं चेक करना है, एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R। तो 2 क्रॉस 2 का कम से कम एक माइनर हमें नॉन ज़ीरो मिल गया, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इसकी रैंक 2 होगी। और दूसरा पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट ये हम 2 पर कब पहुंचे थे, जब एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर 3 क्रॉस 3 के सारे माइनर 0 थे, तभी हम 2 क्रॉस 2 पर पहुंचे। अदरवाइज अगर 3 क्रॉस 3 का कोई भी एक माइनर वहां पर नॉन जीरो मिल जाता तो हमको इस स्टेप में आने की ज़रूरत नहीं थी, और हम वहीं पर इसको कह देते कि दिस इज इक्वल्स टू रैंक 3। तो अब आपको डेफिनेशन के ये 2 पॉइंट थे वो क्लियर हुए होंगे कि एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर R, और R+1 के सारे माइनर 0 होंगे, तभी उस मैट्रिक्स की रैंक R होगी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर एक्चुअली हमको रैंक निकालनी होगी। तो सबसे पहले रैंक A इज इक्वल टू 0 इफ़ A इज इक्वल टू 0। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक 0 तभी हो सकती है जब उसके सारे एलिमेंट्स 0 हो, यानी कि वो नल मैट्रिक्स हो, अदरवाइज रैंक 0 नहीं हो सकती। इसी को हम इस तरीके से कह सकते हैं, रैंक A इज ग्रेटर देन R इक्वल टू 1, 1 या 1 से बड़ी होगी व्हेन A इज नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली उसकी रैंक जो है 1 या 1 से बड़ी होगी। दूसरा, रैंक A इज इक्वल टू रैंक A डैश इज इक्वल टू रैंक A स्टार इज इक्वल टू रैंक A बार। सबकी रैंक जो है वो आपस में बराबर होती है, इंटरचेंज नहीं होती। इफ ऑर्डर ऑफ A इज M क्रॉस N एंड M इज लेस देन N, अगर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है M क्रॉस N और M छोटा है N से, तो जो रैंक ऑफ A है विच इज लेस देन R इक्वल टू M। कहने का मतलब क्या है, अगर हम देखें कि A का ऑर्डर अगर 3 क्रॉस 4 है, ओके, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसकी जो रैंक है A की, इस एग्जाम्पल की, वो छोटे नंबर दोनों में से जो भी जो छोटा नंबर होगा उसके बराबर या उससे छोटी होगी। इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है रैंक उसके बराबर कभी नहीं होगी। दोनों में से अगर रेक्टेंगुलर ऑर्डर है और जो छोटा नंबर है whatever M is less than N या N is less than M, then rank A is less than R equal to 3, 3 से छोटी या उसके बराबर होगी।
इस प्रॉपर्टी का यूज़ होगा, हम देखते ही बता देंगे। और वैसे भी डेफिनेशन से देखें तो आपको जो बताया गया है कि इसके पॉसिबल सब मैट्रिक्स जो है ऑर्डर, स्क्वायर ऑर्डर 3x3 के हो सकते हैं, 2x2 के हो सकते हैं, 1x1 के हो सकते हैं। इससे बड़ा पॉसिबल सब स्क्वायर मैट्रिक्स, सब स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। 4x4 का तो एलिमेंट ही नहीं दिया है, तो यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए ये भी यहाँ से क्लियर होता है कि इसकी रैंक या तो 3 और 3 से छोटी होगी। अगर 3x3 के सारे माइनर 0 हो जाएंगे तब हम उससे छोटे नंबर पे अप्रोच करेंगे और उसकी रैंक 3 या 3 से छोटी होगी। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रैंक ऑफ IN इज इक्वल टू n, वेयर IN बी दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसकी रैंक उतनी ही होगी। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, मान लो I3 लें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। I3 का आप डिटर्मिनेंट निकालो तो सॉल्व करोगे 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। हेंस रैंक I3 इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से रैंक IN इज इक्वल टू n, वेयर n बी द वॉट एवर बी द नंबर। अगर 3x3 का है तो 3 होगी, 4x4 का होगा तो रैंक 4 होगी। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम क्वेश्चंस में रैंक निकालेंगे। क्या करेंगे, मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे दी हुई मैट्रिक्स को, और जिस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी हम उसकी रैंक उतनी ही निकाल लेंगे। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रैंक इज इनवेरिएंट। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इनवेरिएंट अंडर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। लास्ट लेक्चर में आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। तो जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस रूल आपको बताए थे, अगर मैट्रिक्स के अंदर वो किया जाए तो ये थ्योरम ये कहती है कि उसकी रैंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इन प्रॉपर्टीज़ के द्वारा हम अब क्वेश्चन की रैंक निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, इससे क्लियर होगा 8 1 3 6 0 3 2 2 -8 -1 3 4। ये एक मैट्रिक्स है और ऑब्जेक्टिव है कि इसकी रैंक निकालिए। ओके, डेफिनीशन के हिसाब से इसकी ऑर्डर 3x4 है। तो सबसे पहले हम 3x3 के पॉसिबल सब मैट्रिक्स निकालें। जैसे 8 1 3 0 3 2 -8 -1 -3। दूसरा इसको कर दें 1 3 6 3 2 2 -1 -3 -4 एंड सो ऑन। ऐसे करके हम 3x3 के निकालते जाएंगे और उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते जाएंगे। डिटर्मिनेंट A1, डिटर्मिनेंट A2, डिटर्मिनेंट A3 और जैसे मान लो डिटर्मिनेंट A4। अब हम एक एक करके चेक करेंगे। इसकी वैल्यू अगर यहाँ नॉन जीरो आ जाती है तो उसको लिखते ही आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम कह देंगे कि रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 3। सपोज करिए सारे जीरो आ जाते हैं, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट रिड्यूसिंग ऑर्डर 2x2। उसके पॉसिबल सब मैट्रिक्स हम देखेंगे और उनको एक एक करके चेक करते जाएंगे और उसकी रैंक निकालते रहेंगे। लेकिन इसको देखते हुए इससे ये लगता है कि ये तो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो इसके लिए हम बेहतर है कि हम प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसको करें। हम इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा नॉर्मल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। 8 1 3 6 0 3 2 2 -8 -1 -3 4, ये हमारा प्रॉब्लम था।
अब हम इसमें देखिए इसको नॉर्मल मैट्रिक्स में रिड्यूस करेंगे थ्रू एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो पहले मान लीजिए इस केस में जो मैंने आपको बताया था, इसमें कॉलम और रो ऑपरेशंस एक ही क्वेश्चंस में किए जा सकते हैं, जबकि इन्वर्स के केस में नहीं किए जा सकते थे। जैसे मान लीजिए सबसे पहला ऑपरेशन किया C12, तो 1 3 माइनस 1 8 0 माइनस 8 3 2 माइनस 3 6 2 4। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में -3 का मल्टीप्लाई करके दूसरे में जोड़ दें, फर्स्ट रो में 1 का ऑपरेशन करके तीसरे में जोड़ दें। ऐसा करने से क्या होगा, 1 8 3 6 -3 का मल्टीप्लाई करोगे 0 -24 -24 -9 -7 -18 -16। इधर जोड़ना है 1 -1 0 8 -8 0 3 -3 0 एंड 6 + 4 10। ऐसे ऑपरेशंस करने से हमने देखा, हमने पहला कॉलम तैयार करा लिया स्टैंडर्ड आइडेंटिटी 1 0 0। अब इस केस में जहाँ पर हम रैंक निकाल रहे हैं, चूँकि हमको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको 0 बनाएंगे, इसके बाद थ्रू कॉलम ऑपरेशन राइट साइड 0 बनाएंगे नॉर्मल मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो इसके लिए कॉलम 1 में -8 का मल्टीप्लाई करके दूसरे में जोड़ दें, कॉलम 1 में -3 का मल्टीप्लाई करके तीसरे में जोड़ दें, कॉलम 1 में -6 का मल्टीप्लाई करके फोर्थ में जोड़ दें। करिए, इससे 1 0 0 -8 का किया 0 -24, दिस इज 0, दिस इज 0 -7 0, दिस इज 0 -16 एंड देन 10। अब इससे क्या हो गया, पहले ये तैयार कर लिया, फिर ये तैयार कर लिया। यही हमारे पास इसका यही एक ट्रिक है। पहले आप इसको तैयार करेंगे थ्रू रो ऑपरेशन, फिर इसको थ्रू कॉलम ऑपरेशन, देन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट आपको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, कॉलम 3 में -1/24 का मल्टीप्लाई कर दें। हमने आपको बताया था किसी भी कॉलम और रो में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है। 1 -7 -16 देन 0 0 0 10। अब ये तैयार हो गया। तो अब हम इससे देखिए दूसरा भी तैयार हो गया, 0 1 0। ये तो नीचे वाला ऑलरेडी तैयार है, अब इसमें ये 0 करने हैं। तो इसके लिए हम कॉलम 2 में 7 का मल्टीप्लाई करके थर्ड में जोड़ दें, कॉलम 2 में 16 का मल्टीप्लाई करके फोर्थ में जोड़ दें। इससे 1 0 0 0 1 0 0 माइनस कॉलम 2 में 7 का मल्टीप्लाई करके ये कैंसिल हुआ, ये 0 और इधर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये पूरे जो 0 हुए हैं इसको इधर कर देंगे। तो इसमें करेंगे C34। इस ऑपरेशन से 1 0 0 0 1 0 0 0 10 देन 0 0 0। जो सारे 0 हो रहे थे उसको हमने लास्ट में ले गए। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। अगर पूरी रो या कॉलम कोई तैयार 0 0 हो रही है तो उसको हम आखिरी में ले जाएंगे। और अब हम C3 में 1/10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बना 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। दिस कैन बी रिटन एज, ये तो पूरा बन गया I3 0। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये 3 × 3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको तो हमने लिखा I3 और डॉटेड उससे, और साइड में ये 0 बता रहा है कि इसके सारे एलिमेंट 0 हैं। तो दी हुई मैट्रिक्स की रैंक 3 हो गई। क्यों 3 हो गई? क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू वो I3
में कन्वर्ट हुआ, जिस ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम आसानी से रैंक निकाल सकते हैं। देखें क्वेश्चन और क्लियर होगा। नेक्स्ट देखें 0 1 2 -1 1 0 1 1, नेक्स्ट 3 1 0 2 एंड देन 1 1 -2 0। ये देखें हमारे पास 4x4 का मैट्रिक्स है। इसमें हम सबसे पहले, अब हमको सीधा कोई हमें स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स नहीं बनाने हैं, डेफिनेशन हमको समझने के लिए थी। क्वेश्चंस हमें इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके कि इसको नॉर्मल मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है और जिस ऑर्डर का नॉर्मल मैट्रिक्स होगा उसकी उस रैंक की मैट्रिक्स वही होगी। इसमें हम सबसे पहले मान लीजिए करते हैं R1 2, क्योंकि यहाँ 1 बना हुआ है, इसको ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें, तो इससे आ गई 1 0 1 1। इंटरचेंज फर्स्ट रो बाय द सेकंड रो। कॉलम भी कर सकते थे आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ऑपरेशन हमने किए हैं वही आप करें। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, पहले स्टेप में आप किसी को भी इंटरचेंज कर सकते थे, इसको ले आकर इधर कर देते तो भी ये 1 बन जाता, चौथी रो पहली रो से कर देते तो भी 1 बन जाता, कुछ भी कर सकते हैं, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हमारा टारगेट यहाँ पर A11 को 1 बनाना था। जब ये 1 बन गया तो आपको हमने बताया था कि इसके नीचे के एलिमेंट 0 करना थ्रू रो ऑपरेशन R1 से। अब R1 में, अब चूंकि इसके नीचे का इमीडिएट नंबर 0 है इसलिए उस ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, -3 का मल्टीप्लाई करके थर्ड में जोड़ दें, R1 में -1 का मल्टीप्लाई करके फोर्थ में जोड़ दें। तो हमारा देखिए पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। तो करना हम ये चाहते हैं 1 0 0 0 बना रहे हैं, पहला टारगेट ये। अगर आपको क्लियर होगा तो 1 0 1 1 0 1 2 -1, क्योंकि सेकंड रो में तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अब इधर करेंगे -3 का 0, दिस इज़ 1 -3 एंड दिस इज़ -3 2 -3 -1। इधर 1 -1 0, दिस इज़ 1 -1 -3, दिस इज़ -1। तो ये हमारे पास पूरा तैयार हो गया। अब हमको थ्रू कॉलम ऑपरेशन इसको 0 करना है, इसके फिर इमीडिएट 0 है इसलिए कॉलम 1 में -1 का मल्टीप्लाई करके थर्ड में, कॉलम 1 में -1 का मल्टीप्लाई करके फोर्थ में जोड़ें। तो ये आएगा 1 0 0 0। जब आप इसको करोगे तो 0 1 1 1, और ये आया 0 2 -3 -3 एंड दिस इज 0 -1 -1 -1। तो इससे ये हुआ कि ये पहला कॉलम और ये रो दोनों तैयार हो गए। इसके बाद हमको ये एलिमेंट लीडिंग डायगोनल यानी कि ये 1 बनाना था, ये ऑलरेडी इसमें 1 बना हुआ है इसलिए इसमें वो स्टेप नहीं करना होगा। तो अब हमको नीचे के एलिमेंट 0 बनाने हैं, बनाने R2 से हैं। R2 में -1 का मल्टीप्लाई करके थर्ड में जोड़ दें, R2 में ही -1 का मल्टीप्लाई करके फोर्थ में जोड़ दें। तो 1 0 0 0 0 1 2 -1, इसको करोगे 0 1 -1 0, यहाँ -2 -5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 -1 0। इधर करेंगे 1 -1 0 1 -1 0 -5 एंड देन इट इज +1, दिस इज 0। ये आ गया। अब हमको थ्रू कॉलम ऑपरेशन बगल के 0 बनाना है, तो इसको ऐसा लिखें, कॉलम 2 में -2 का मल्टीप्लाई करके थर्ड में जोड़ दें, कॉलम 2 में 1 का ऑपरेशन करके फोर्थ में जोड़ें। तो 1 0 0 0 0 1 0 0, ये आया 0, दिस इज 0 -5 -5
and this is 0, again it is 0, this is 0 0. तो ये देखें, ये 2 रो और ये 2 कॉलम इतना पूरा सेट हो गया। अब हमको नेक्स्ट जो है इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हम अब इसमें भी फ्री हैं, जैसे कॉलम 3 में अगर -1/5 का मल्टीप्लाई कर दें तो उससे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 देन 0 0 0 0 ये आ गया। जब ये 1 बन गया तो इसको नीचे का 0 बनाना है, तो R3 में -1 का गुणा करके 4th में जोड़ दें, तो उससे ऑपरेशन आएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 देन 0 0 और 1 -1 0। तो यहाँ से देखें ये आ गया, दिस इज I3। ऐसा अगर आप बना लेंगे तो आप देखें इसको ऐसा लिखेंगे I3, और ऐसा इसको कहते हैं पार्टीशन ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे पार्टीशंस बना लीजिए और सब में देखें आप, इसके अलावा पूरे 0 हैं तो हमने लिख दिया पार्टीशन बना के, दिस इज 0। और I3 का 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार हुआ, इसलिए रैंक A = 3। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि कितना भी बड़ा मैट्रिक्स हो, अगर हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके रैंक निकालेंगे तो वो बड़ी आसानी से निकलेगा, रादर देन डेफिनीशन में जाने के कि डेफिनीशन हम अप्लाई करें और उससे छांटें स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स और फिर एक एक चेक करें, वो बहुत लेंदी होगा। तो इसलिए हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम रैंक को निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन रैंक का ज़रूर आता है आप लोगों को, और आएगा रैंक में ये क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, रिड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स। फुल क्वेश्चन ऐसा लिख के आ सकता है, करना वही है। अब देखिए दिए हुए क्वेश्चन में पहला A11 ऑलरेडी 1 है, इसलिए इसमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके नीचे के 0 बनाएंगे, थ्रू बनाएंगे R1 में -1 का मल्टीप्लाई करके सेकंड में, R1 में -2 का मल्टीप्लाई करके थर्ड में, R1 में -3 का मल्टीप्लाई करके फोर्थ में। एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही मैंने आपसे बताया था, आगे सारी मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही होगी। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। -1 3 -2 1 2 -1 1 2 -2 0। इधर देखिए -2 को मल्टीप्लाई कर रहा है, दिस इज 0 -4 4 -4 0 -2 3 -2 1 -4 4 -4 0 -3 का मल्टीप्लाई करना है, ये 0 3 2 6 1 और यहाँ आया -3 4 -3 1, यहाँ -6 6 -6 0। ये हमारे पास चारों ऑपरेशंस करने के बाद देखिए ये फर्स्ट कॉलम हमारा एक ही स्टेप में तैयार हो गया। आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है, और अगर नहीं कर सकते तो आप इसको एक एक करके करिए, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जब ये तैयार हो गया तो अब हमको इसके बगल वाले के 0 बनाने हैं, और ये 0 हमारे कॉलम ऑपरेशन से बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या करना होगा, कॉलम 1 में -2 को मल्टीप्लाई करके सेकंड में जोड़ दें, कॉलम 1 में ही -1 का मल्टीप्लाई करके तीसरे में जोड़ दें, कॉलम 1 में -2 को मल्टीप्लाई करके फोर्थ में जोड़ दें। तो इससे 1 0 0 0, यहाँ से -2 को मल्टीप्लाई किया, ये 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0। देखिए ये तैयार हो गया। इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए ये पूरा आप चाहें तो ये तैयार हो गया। अब हमको नेक्स्ट इसको 1 बनाना था, जो ऑलरेडी 1 बना हुआ है। तो R2 में इसके नीचे के एलिमेंट 0 बनाने के लिए इसमें -4 से मल्टीप्लाई किया और करें 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0। इधर जब फोर्थ में मल्टीप्लाई करोगे ये 0 1 -1 0 1 -1 0 एंड दिस इज 0।
अब इसके साइड के जीरो बनाने के लिए ये एलिमेंट 1 है, इसकी ये देखिए ये तैयार हो गई पूरी रो। इसको जीरो बनाने के लिए हम अगर आगे इसी में देखें तो सेकंड कॉलम में -1 का मल्टीप्लाई करके थर्ड में जोड़ दें तो इससे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 और यहाँ से 1 - 1 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 0 0 0 0। ये तैयार हो गया। अब आप इसमें देखिए इस तरीके से डॉटेड लाइन लगा दीजिए। इस मैट्रिक्स में भी देखें आप, ये बना नॉर्मल मैट्रिक्स बना I3 और ये डॉटेड लाइन पार्टीशन के द्वारा ये क्लियर दिखाई दे रहा है, उसके दाएं बाएं के सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसलिए रैंक A इज इक्वल टू 3। ये फिर 3x3 के नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हुआ तो इसकी रैंक आ गई 3। तो आपने रैंक के केस में जो स्पेशल देखा, ध्यान दीजिए, हमने आपसे इन्वर्स के केस में, एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकालने के केस में ये कहा था कि अगर आप उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए अगर रो ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं तो थ्रू आउट रो ऑपरेशन करना होगा, बीच में कॉलम ऑपरेशंस नहीं कर सकते। मिक्स्ड ऑपरेशन क्यों नहीं करते वो भी आपको बताया था। और अगर आप कॉलम ऑपरेशन से स्टार्ट करते हो तो थ्रू आउट कॉलम ऑपरेशन से करना है। लेकिन आपने यहाँ देखा कि रैंक निकालते समय जब नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो उसमें हमें ये नहीं करना होता, हम मिक्स्ड ऑपरेशन पॉसिबल हैं जिसको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रैंक निकालनी होगी। एक क्वेश्चन और रैंक का बताते हैं जिससे आपका ये पोर्शन आज कंप्लीट हो जाए। 3 - 1 3 1 -7 -4 -1 -2 0 1 2 3 then 0 -2 -1 3। देखिए आप प्रैक्टिस जो आपको नियम बताए जा रहे हैं उस पर करिए, हिडन ट्रायल मेथड से मत करिएगा, क्योंकि उससे आपको मैंने आप पहले भी बताया था कि क्वेश्चंस में आपको हो सकता है आप स्टेप सही कर रहे हों लेकिन फिर आप 2-3 स्टेप बाद घूम के फिर जो जीरो में कन्वर्ट किया है वो बदल जाए, इसलिए आपको जो स्टेप्स का मेथड स्टैंडर्ड बताया जा रहा है उसको यूज़ करिए। अब यहाँ पर हमको A11 लाने के लिए सबसे सिंपल ये दिख रहा है कि चौथे कॉलम का पहला एलिमेंट 1 1 है, तो सबसे पहले हम इसमें यहीं पर कर देते हैं C14। C14 लगाने पर 1 -2 3 3 -1 -4 1 -2 3 -1 2 -1 और ये आया 3 -7 0 0। हमने आपस में रिप्लेस कर दिया। क्यों कर दिया, मोटिव क्या था वो आपको पता है। पहला एलिमेंट 1 बनाना सबसे आसान है, इंटरचेंज करके अगर बन जाए तो सबसे पहले वही ऑपरेशन करने होते हैं। जब ये 1 बन गया इसके नीचे के एलिमेंट 0 बनाना थ्रू R1 से। R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके सेकंड में जोड़ दें, R1 में -3 का मल्टीप्लाई करके थर्ड में जोड़ दें, R1 में -3 का मल्टीप्लाई करके फोर्थ में जोड़ दें। इससे 1 -1 3 3 ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 0 -2 -6 आ गया, 3 2 जा 6 6 -1 5 3 2 जा 6, दिस इज -1। यहाँ पे -3 का मल्टीप्लाई करें ये 0 -3 का 3 + 1 4 -9 2 -9 इज -7, दिस इज -3 -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो -9 इट इज़। फोर्थ में -3 का फिर मल्टीप्लाई किया, दिस इज़ 0 -3 3 -2 1 -9 -10 या -9, दिस इज़ -9। ये देखिए स्टैंडर्ड कॉलम आपका तैयार हो गया। नेक्स्ट हमको इसको 0 बनाना है। इसके लिए बनाना कॉलम 1 से है। कॉलम 1 में 1 का मल्टीप्लाई करके दूसरे में जोड़ दें, कॉलम 1 में -3 का मल्टीप्लिकेशन करके दूसरे में तीसरे में जोड़ दें और कॉलम 1 में -3 का मल्टीप्लाई करके फोर्थ में जोड़ दें। इससे 1 0 0 0
1 का मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 1 दिस इज 0 माइनस 6 4 1 माइनस 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये 0 5 माइनस 7 माइनस 10 एंड दिस इज 0 माइनस 1 माइनस 9 देन माइनस 9। ये देखें आप फर्स्ट पूरा तैयार हो गया। अब हमको इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हमारे पास फिर ये तरीका देखो, चौथे कॉलम को इससे रिप्लेस कर दे तो यहाँ 1 बना हुआ है। तो हम सबसे पहले C24 करेंगे। क्यों करेंगे आपको मैंने बता दिया, 1 0 0 0 यह आ जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 9। तीसरे कॉलम में कोई बदलाव नहीं है, उसको एज इट इज़ उतारना है। और फोर्थ कॉलम सेकंड कॉलम इधर चला गया माइनस 6 4 1। अब चूंकि पॉजिटिव 1 बनाना है इसलिए कॉलम 2 में माइनस 1 का मल्टीप्लाई करने पर ये पॉजिटिव 1 बन जाएगा। आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा। अब ये 1 बन गया। अब जब ये 1 बन गया तो इसके नीचे के एलिमेंट 0 बनाना। R2 में माइनस 9 का मल्टीप्लाई करके थर्ड में जोड़ दें। R2 में माइनस 9 का मल्टीप्लाई करके फोर्थ में जोड़ दें। ये दो ऑपरेशंस अब हम करेंगे तो इससे जो मैट्रिक्स बनेगा 1 0 0 0 0 1 5 माइनस 6 माइनस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 0, ये माइनस 45 माइनस 52 54 54 और 4 58 माइनस 9 दिस इज 0 दिस इज 0 माइनस 45 माइनस 55 और यहाँ 55। अब हमको कॉलम 2 में माइनस 5 का मल्टीप्लाई करके थर्ड में जोड़ दें। कॉलम 2 में 6 का मल्टीप्लाई करके फोर्थ में जोड़ दें। ऐसा करने से 1 0 0 0 0 1 0 0 0 यहाँ माइनस 5 किया दिस इज़ 0 दिस इज़ माइनस 52 माइनस 55। इधर 6 का मल्टीप्लाई किया दिस इज़ 0 दिस इज़ 0 दिस इज़ 58 एंड देन 55। तो ये हमारे पास तैयार हो गए। अब हमको देखिए यहाँ तक ये तैयार हो गया। अब हमको इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हम चाहें तो इसकी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो, लेकिन फ़िलहाल हम ऐसा करते हैं कि कॉलम 2 में माइनस 1/52 का मल्टीप्लाई कर दें कॉलम 2 में। तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 दिस इज़ 1 और ये आ जाएगा 55/52 एंड दिस इज़ 0 0 58 एंड देन 55। अब यहाँ पर इसको 0 करने के लिए R3 में माइनस 55/52 का मल्टीप्लाई करके फोर्थ में जोड़ दें। हो सकता है कुछ ऊपर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो जिसकी वजह से इस तरीके के रेशनल नंबर आ रहे हैं। इसको एक बार आप ज़रूर अपने आप करिएगा। मैं आपको यहाँ पर मेथड बता रहा हूँ, कुछ हो सकता है इसके कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, आई एम नॉट श्योर। अब यहाँ पर आप जब माइनस 55/2 करोगे तो दिस इज़ 0 दिस इज़ 0। यहाँ पर आप माइनस 55/52 करोगे तो ये आएगा 55 माइनस 58 इंटू 55/52। इसको करेंगे तो ये जो भी आएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा। और इसके बाद जब ये 0 हो गया तो कॉलम 3 में इसकी कुछ भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए से इट इज़ अल्फ़ा। अब हम इसको यहाँ ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए से इट इज़ अल्फ़ा आ गई, हम यहाँ अल्फ़ा ही लिख देंगे। तो ये बराबर 1 0 0 0, आप इसको करेक्ट करिएगा, 0 1 0 0 0 0 158 और ये 0 0 0 और ये मान लीजिए अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करिएगा 55 इंटू 52 माइनस 58 इंटू 55/52।
55 कॉमन आएगा, -6 यहाँ आ जाएगा, -55 इंटू -6/52, कुछ इस तरीके से आएगा, ये बराबर अल्फ़ा। अब हम C3 में -58 का मल्टीप्लाई करके फोर्थ में जोड़ेंगे। तो ऐसा करने से 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 और ये आ जाएगा 0, दिस इज 0 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए ये आ गई x, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे -58 का, तो यहाँ पर ये अल्फ़ा ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये 0 है। तो ये यहाँ पर इसको 1 बनाना होगा, तो ये बराबर देखिए ये आ रही है रैंक A = 4, क्योंकि यहाँ पर ये 0 नहीं आ रहा, इसलिए दिए हुए मैट्रिक्स की जो है वो रैंक 4 है। और ये 4x4 का मैट्रिक्स था, इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ अभी हमने लिया, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो रही होगी, इसकी हमारी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं हो रही होगी, सॉरी इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो डिटर्मिनेंट A हम चेक करें वो नॉन ज़ीरो आ रही होगी, इसलिए इसकी रैंक जो है वो 4 आ रही है। तो इस तरीके से हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके हम कंक्लूज़न निकालेंगे कि दिए हुए मैट्रिक्स की रैंक ये होगी। अब आप रैंक की प्रैक्टिस करिए और कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो गूगल क्लासरूम में आप मेंशन कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।